নমস্কাৰ USTM জ্ঞান প্ৰবাহলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই নবনিতা দশমৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল মেট্ৰিকৰ ফলাফল আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰো ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে এই দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পিছত কোনটো ষ্ট্ৰীম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু অভিভাৱকসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰিব যে কোনটো ষ্ট্ৰীম তেওঁলোকৰ সন্তানে পঢ়া উচিত লোৱা উচিত এই সন্দৰ্ভত আজি আমি কথা পাতিম কাৰণ একেবাৰে সমুচিত সময় এই সময়তে যেহেতু দেখা গৈছে যে 10th আৰু 12th ৰিজাল্টছ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে বহুতে বিচাৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে অসমৰ পৰা আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈও যায় কিন্তু তাৰ মাজতো থাকি যায় কিছু ল্যাপস বুলি আমি যাক কওঁ যে প্ৰিপাৰেশ্যন বহুত কৰে কিন্তু তাৰ পিছতো কি কাৰণত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ হোৱাত বা সময় বা যিখিনি ৰেংকিঙত কিছু পিছুৱাই থকা যেন পৰিলক্ষিত হয় এই সন্দৰ্ভত আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ যিসকল পেনেলিষ্ট গেষ্ট আছে তেওঁলোকক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে আছে মিষ্টাৰ দেৱাশিষ সাহা দ্য ডিৰেক্টৰ অপাৰেশ্যনছ অফ USTM ৱেলকাম টু দ্য শ্ব' আমাৰ সৈতে আছে শ্ৰী দিনেশ লাহোটি BTech IITG and VP of Academy and Innovation of Vision 50 Academy. Our logot ase Ridesh Shortiyar is the VP Research and Development of Vision 50 Academy. Gotike moi arambho koribo bisarim Debashish Shahar pra. Mr. Shaha, USTM has been always pursuing certain courses for students বা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে যিসকল ধৰক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সকলৰ বাবে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি স্কলাৰশ্বিপৰো ব্যৱস্থা কৰে কিন্তু আমি যদি বিশেষকৈ Vision 50 একাডেমীৰ কথা আমি পাতিম দিনেশ আৰু হৃদেশৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে দশম আৰু দ্বাদশ অৰ্থাৎ after 10th and 12th how should a student prepare himself or what stream the student should choose? আজিৰ দিনত এই কোৱেশ্চনটো খুব ৰেলেভেণ্ট এজন ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া 10th বা 12th লৈ পায় আইডিয়েলি 10thৰ পৰা মনৰ ভিতৰত চিন্তা ভাৱনাবোৰ আৰম্ভ হৈ যায় যে মই কি লৈ পঢ়িব বিচাৰোঁ কি কৰিব বিচাৰোঁ কি লৈ পঢ়িব বিচাৰোঁ সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব মই জীৱনত কি কৰিব বিচাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত এতিয়া ধৰক কোনবা ষ্টুডেণ্টে বিচাৰিব পাৰে যে মই মোৰ পেশন মোৰ যিটো ইন্টাৰেষ্ট আছে সেইটোৱে অকল মই ড্ৰাইভ কৰিম বা কোনবা ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা বিচাৰিব পাৰে নে নাই মই এটা হাই ফ্লাইং জব এটা লাগে বা কোনবা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ফালে যাব পাৰে সো অল দিস থিংস এইবিলাক বস্তু নিজে ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰি পেলাই নিজক বুজিব লাগিব যে মই কি বিচাৰোঁ মই কি ভাল কৰোঁ এতিয়া ধৰক তাৰ পিছত সেই হিচাপে তেওঁ কিছুমান ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব আজিকালি আমাৰ দিনততো তেনেকুৱা কোনো ইন্টাৰনেট বা হেবিলাক সেৱা নাছিলে we had to only depend on magazines and computation success and all this kind of magazines but azir dinot the students have an access to total internet medium so tate research kori ulabo lagbo je moi jodi kiba eta bostut interested hoy so hey interestor area to mur ki scope ase কৰিবৰ কাৰণে কি ধৰণৰ জব অপৰচুনিটিজ আছে হেতু হিকিবৰ কাৰণে কিবা প্ৰফেশনাল কলেজ अवेलेबल আছে নেকি সো দিস আর দ্য এৰিয়াজ হুইচ হি হ্যাজ টু ফাইন্ড আউট মই এটা কিবা এটা ইন্টারেস্টেড কিন্তু হেতু হিকাৰ কোনো জায়গা নাই হেতু হিকি পেলাই মই কৰিবলগীয়া তেনেকা একো নাই হেতু অলপ কোৱেশ্চনেবল সিচুৱেশন হৈ যাব পাৰে যদিও এটো ইন্ডিভিজুৱেল চয়েস তথাপি মই হেতুৱে পাৰসিউ কৰিব বিচাৰো বাট ষ্টিল আই থিংক হেতু এটা কোৱেশ্চনেবল এটা এৰিয়া আহি যায় দেন ফৰ জবস এতিয়া ধৰক মই যদি চাকৰি কৰি পেলাই ফৰ দ্য নেক্সট 20-30 ইয়াৰ্স আই ওয়ান্ট টু বি ভেৰি সাকসেসফুল ইন মাই জব দেন মই এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰীম সিলেক্ট কৰিব লাগিব যিটোত অহা দিনবোৰত প্ৰসপেক্ট এণ্ড অপৰচুনিটিজ আৰ ইমেন্স Absolutely. এতিয়া যিটো ইন্ডাষ্ট্ৰি বাঢ়ি আছে বা যিটো ইন্ডাষ্ট্ৰি নতুন উলাবলৈ লৈছে সাজু হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড যদি ষ্টাডিজ মই কৰোঁ বা এডুকেশ্যন পাৰসিউ কৰোঁ তেনেহ'লে মই এনচিয়ৰ কৰিব পাৰিম যে মই চাকৰি এটা ভাল চাকৰি এটা পাম and I will be in demand and I'll have to keep on upgrading but last thing what is very important is the entrepreneurship আজিৰ দিনত মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ দিনত আজি ল'ৰা ছোৱালী এজন যদি নিজৰ কাৰণে নিজে কিবা কৰিব বিচাৰে that is I think a really commendable situation so হেইটোৰ কাৰণে ধৰক যেনেকৈ USTM আপুনি USTM ৰ কথা ক'লে we have got a center for innovation incubation and entrepreneurship okay tate we ensure that our students are trained on design thinking and innovation so that আজি মই এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হম বুলি ক'লে হ'ব নোৱাৰে সো তাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰসেস আছে you need the skills সো হেই ডিটেইলছ বোৰতো আমি চাওঁ
So these are the things which I think a student should take care. Of course, and pursuing something at this time when we are all hit by a global pandemic situation এটাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে ৰাজ্যৰ বাহিৰত পঠাবলৈকো পেৰেণ্টছ অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে যে বাহিৰলৈ নপঠাম কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব because we saw like lakhs of students came back to the state last year in the pandemic situation and most of them didn't go back. So if they get that structure in our state itself, of course, ইয়াতে যদি তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পায় নৰ্থ ইষ্টত তেতিয়া তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ঘূৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে বা তেওঁলোকে যোৱাৰো প্ৰয়োজন নাথাকে. We'll definitely come to Dinesh Lahoti and we'll talk about it. কিন্তু এটা সৰু বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছিল. So খন্তেক সময় বিৰতি আপোনালোকে চাই থাকক USTM জ্ঞান প্ৰবাহ. বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ যে দশম আৰু দ্বাদশৰ যিহেতু ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক দেখা গৈছে আমি যদি চাওঁ শতাংশ হিচাপত তেতিয়াহ'লে 99% উত্তীৰ্ণৰ হাৰ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব কি পঢ়িব কেনেকৈ আগবাঢ়িব আৰু কৰোনা মহামাৰী অতিমাৰী এই সময়ছোৱাত গ্লোবাল পেণ্ডেমিকৰ এই সময়ছোৱাত কি কৰিলে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব কেনেকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে থাকি তেওঁলোকে পঢ়া শুনাত অগ্ৰণী ভাগ ল'ব পাৰিব বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব সেই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছিলোঁ মই দেৱাশিষ সাহাৰ সৈতে তেখেতৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁ ক'লে যে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ইজ অফক'ৰ্ছ ইউ হেভ টু বি ইন'ভেটিভ টু ষ্টে ইন লাইন এণ্ড whatever is the circumstances, being with the circumstance and moving on with that keeps you always in demand. So now I'd like to move on to Dinesh Lahoti. Current situation जो है, I already had a conversation with Devashish sir that इस pandemic के वक्त में students और parents दोनों के बीच में confusion है, stream क्या ले, कैसे ले, किस तरीके से आगे बढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करें, ये सवाल सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में है फिलहाल. आप क्या कहोगे? जी देखिए लाइक अभी जो टाइम है डेफिनेटली जो क्लास यूजुअली हमारे स्टेट में ये कल्चर है कि हम क्लास 10th के मार्क्स देख के हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं बट इस साल जो 10th का मार्क्स आया है पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि वो एक्चुअली ट्रू रिफ्लेक्शन है क्या और ये हम हमेशा कहते हैं कि क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे अगर आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो शायद वो गलत डिसीजन ही होगा. तो आई थिंक ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आपको जब स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू सेलेक्ट द स्ट्रीम. फर्स्ट कि आपका स्ट्रीम सिलेक्शन आपके करियर के बेसिस पे होना चाहिए ना कि आप स्ट्रीम सेलेक्ट करके करियर डिसाइड करें. एक अप्रोच होता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है कि चलिए मैंने कॉमर्स ले लिया अब मैं देखता हूँ कि कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. दूसरा तरीका है कि हम पहले ये समझे कि हमें क्या करना है और उसके हिसाब से देखें कौन से स्ट्रीम मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा. तो जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जिनका रिजल्ट आ चुका है आई थिंक आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए पहला ये क्लैरिटी आपको लाना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है आगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ करियर्स होते हैं जो साइंस से ही आप कर सकते हैं कुछ करियर्स होते हैं आप कॉमर्स से या ह्यूमैनिटी से कर सकते हैं बट ऐसे काफ़ी करियर्स हैं जो आपके स्ट्रीम पे डिपेंड भी नहीं करता. लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर लॉयर बनना है तो इट डजंट डिपेंड ऑन द स्ट्रीम. आपको अगर डिज़ाइन में करियर परस्यू करना है इट डजंट डिपेंड ऑन द स्ट्रीम. ऐसे बहुत सारे न्यू एज करियर्स हैं जो स्ट्रीम पे डिपेंड ही नहीं करता रादर वो डिपेंड करते हैं कि आपने सब्जेक्ट क्या लिया है. तो सेकेंड पार्ट है कि अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टिंग स्ट्रीम द मोर फोकस शुड बी ऑन सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट. नाउ काउंसिल जो हमारे जो स्टेट बोर्ड का जो बोर्ड से जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है. सिमिलरली सीबीएसई स्कूल्स में अगर कोई स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है. आप देखेंगे कि बायोलॉजी जो है काफ़ी पेरेंट्स यही नहीं जानते कि बायोलॉजी सब्जेक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल वो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट भी ले सकते हैं बट वो डिपेंड करेगा कि वो स्कूल ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास 11 we hardly see such combinations yes actually. I'm very happy to share like abhi we have worked with many schools and many schools in Guwahati now have started offering biology for humanities and I will tell you the reason for it. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ में जिनको साइकोलॉजी आगे जाके पढ़ने का मन है तो अगर वो 11th 12th में
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनको इतना हेल्प नहीं करेगा, बट अगर वो बायोलॉजी लेते हैं 11th-12th में, इट विल ओपन अप मोर ऑप्शंस फॉर देम. दे कैन परस्यू क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसके बिना भी कर सकते हैं, बट हैविंग अ फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी विल हेल्प देम. इवन इन होम साइंस दे कैन गो अहेड, राइट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि आपको जो भी बनना है. मतलब मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जिनको जो कॉमन क्वेरी रहता है कि सर मुझे एनडीए ज्वाइन करना है, डिफेंस का हमारे राज्य में बहुत कल्चर है, बहुत क्रेज है, बट मुझे एनडीए ज्वाइन करना है. बट आपको अगर एनडीए करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स एक पार्ट ऑफ द सिलेबस है. अगर आप मैथमेटिक्स 11th-12th में नहीं लेते हैं तो आपका एनडीए में क्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इन काफ़ी एग्जाम्स में, जैसे अगर आपको एनडीए में अगर आपको पायलट बनना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द एयरफोर्स, सो यू हैव टू हैव फिजिक्स एंड मैथ्स. तो अगर आप, मतलब सिंपल चीज़ है, मुझे पायलट बनना है, आपको पायलट बनना है, ग्रेट, बट आपको ये समझना है कि मुझे पायलट बनने के लिए मेरे को मेरा एजुकेशन कैसे हेल्प करेगा. बिकॉज सी द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी, इट शुड बी एनेबलर. आपको वो हेल्प करना चाहिए आपके गोल को चेस करने के लिए. सो मेरा बहुत यही सजेशन है कि आप स्ट्रीम सिलेक्ट करिए और सब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए. बिकॉज आपने साइंस ले लिया, अब अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं साइंस में, तो आपके अप्रोच ऑफ लर्निंग पूरा अलग हो जाएगा. साइंस में काफ़ी इकोनॉमिक्स भी आप लेके साइंस में बहुत आगे जा सकते हैं, राइट. या आप देखिए कि इकोनॉमिक्स अगर आप लेते हैं और अगर आप मैथ्स नहीं लेते हैं तो आपका करियर में ड्रॉप हो जाएगा. बिकॉज बीएससी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स स्किल्स आपको चाहिएगी. तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस टॉक के थ्रू यही शेयर करना चाहूँगा पेरेंट्स के साथ एंड स्टूडेंट्स के साथ कि आप ये पहले पता करिए कि आपको क्या बनना है. एंड अगर आपको ये मालूम चल गया कि क्या बनना है तो आप बैक कैलकुलेट करिए कि कौन सा स्ट्रीम या कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस विल हेल्प मी अचीव माई गोल. क्या बनना है, ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली. क्योंकि क्या बनना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे हैव अ सर्टेन माइंडसेट, जो स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन माइंडसेट बट द पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड वॉट एवर द पेरेंट्स वांट or they couldn't achieve, they want their children to achieve that. So the role of the parents, I think, Ridesh, is quite they have to understand the mindset of their child. एक्चुअली मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि दिनेश सर ने और हमारे डायरेक्टर सर ने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए कि वो अपने बारे में सोचे. दैट मीन्स अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, पीयर प्रेशर में रहेंगे कि मेरा दोस्त अगर साइंस ले रहा है मैं भी साइंस ले लेता हूँ, ठीक है. अगर आप ये सोचेंगे नहीं मेरे पेरेंट ने मेरे को बोला है कि भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगा, तो आप बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस लेवल पे है कि आप उसमें नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे. दैट मीन्स योर चॉइस इज द प्राइम थिंग. मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि भाई अपने बच्चों के ऊपर आप प्रेशर मत डालिए, लेट देम डिसाइड देयर फ्यूचर. I think the parents should understand what their child is capable of. देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल. सपोज दैट मैं बोलूँ कि पेरेंट ने बोला कि नहीं मेरा बेटा आईआईटी करेगा, ठीक है. बेटे ने खूब मेहनत किया बिना मन से, जैसे तैसे करके वो आईआईटी में अगर पहुंच भी गया तो आईआईटी में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. 4 साल उसके बर्बाद होंगे, उसका लाइफ जो है वो एकदम आईआईटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ कि हेल बन जाएगा, लिविंग हेल. हमने देखा ऐसे लोगों को जो पीयर प्रेशर में, पेरेंट प्रेशर में और पेरेंट की एस्पिरेशन को पूरा करने के चक्कर में आईआईटी पहुंच गए, बट उन्हें पसंद ही नहीं अपनी ब्रांच, वो पढ़ना ही नहीं चाहते इंजीनियरिंग. तो वो बाद में वो लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे पास हो जाते हैं और उसके बाद दूसरा अपना जो चॉइस है उनका, जो उनका मतलब पहले से सेट गोल था, वो उसके तरफ चले जाते हैं. बहुत सारे लोग एमबीए करके मैनेजर वाली पोस्ट पे जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं फोटोग्राफी में चले जाते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट in my batch also and I think in Dinesh batch also who are not engineers now. They are doing something else. वो कहावत है ना इंडिया में कि लोग पहले इंजीनियर बनते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करियर करना है. तो ये एक्चुअली एप्लीकेबल है. It actually happens. मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसा हर फील्ड में होता है. हम और बात करेंगे इस बारे में डेफिनेटली. आई थिंक द रोल ऑफ द पेरेंट्स इज मोर देन द रोल ऑफ द स्टूडेंट हियर. विल टॉक अबाउट इट बट विल हेड ऑन टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हियर.
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে অভিভাৱকসকলৰ কেনেধৰণৰ ৰোল থাকে দৰাচলতে নিজৰ সন্তানক জীৱন পথত বা জীৱন সংগ্ৰামত অগ্ৰসৰ হৈ পেলাই কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ যি গ'ল বা এম ইন লাইফ আছে তাক কেনেকৈ এচিভ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছিলোঁ সো হৃদেশ वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि पीयर प्रेशर हो पेरेंट प्रेशर हो और साथ ही साथ अगर हम देखें अगर कोई चाहता भी हो लाइक यू नो जस्ट एज वी वर कन्वर्सिंग इन द ब्रेक टाइम दैट देवाशीष सर सेड कि अगर कोई डोमेन है जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी है बट दैट स्टूडेंट द स्टूडेंट कैन नॉट परस्यू इट बिकॉज वो सुविधा नहीं है तो व्हाट कैन बी डन इन दैट सिचुएशन देखिए एक्चुअली मतलब मैं जो कन्वर्स कर रहा था मैं अब आपको एक बार उसका बेसिक टाइमलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले आप बिना पीयर प्रेशर के बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के आप अपनी फील्ड चूज करिए। ये बच्चों के हाथ में है, ठीक है, ये बच्चों के हाथ में है, ये बच्चों के पेरेंट्स को समझना जरूरी है। ये मैं पेरेंट्स को हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं मतलब गुवाहाटी में मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे हर साल ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो बोलते हैं सर हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो फीलिंग है ये फीलिंग पेरेंट्स ही दूर कर सकते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भाई हम बच्चे के ऊपर प्रेशर ना दें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपने जो भी गोल सेट किया है, जो भी आपकी चॉइस है, फिर उसके साथ आपको पूरा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे मतलब मैं कहूँ कि ले बैक आ सकते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज आ सकती हैं। जैसे एक डिफिकल्टी आप अभी बोल रहे हो कि उसमें हम मेरे को मतलब जो कैरियर ऑप्शन है या जो पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम है वो बना ही नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी फील्ड की बात करता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी। आज से 20 साल पहले इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का कोई स्कोप नहीं था, कोई ऑफर नहीं करता था बायोटेक्नोलॉजी। बट आज हर एक जगह पे हर एक कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अपने गोल के साथ टिके रहिए, आज नहीं तो कल सपोर्ट सिस्टम जरूर मिलेगा। ठीक है, ये इस पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि सर आपने से एग्जांपल ले रहे थे कि लाइक एक स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है अभी ओलंपिक्स का एग्जांपल से अगर रिलेट करें कि एक स्टूडेंट है जिसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, राइट। अगर एक स्टूडेंट को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, देखिए हम जिस तरीके से करियर का प्लानिंग करते हैं इंडिया में और आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड का देखेंगे ना, बहुत डिफरेंस है। एंड आई वाज रिसर्चिंग एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी क्या होता है कि हम यहाँ पे करियर एक जो भी हमें बताया जाता है हम वो फॉलो करते हैं, बट आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में दे इन्वेंट करियर। लाइक हमारे देख शेफ इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पे हमारे हलवाई का कॉन्सेप्ट था ही, बट हलवाई के साथ आपने साइंस ऐड कर दिया, राइट। तो आपने उसको शेफ बोला, एंड जो बंदा अभी खाना बनाता है वो एक अच्छा शेफ भी बन सकता है गिवन उसको राइट एजुकेशन मिले, राइट। एंड इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो मैजिक होता है, जो मैंने मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन से, कि आप कभी भी कोई एक फील्ड को जब आप लेते हो, आप उसके साथ आपको उसका फैमिली ऑफ फील्ड को साथ में देखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो क्या स्पोर्ट्स ही मेरा एकमात्र है? बिल्कुल नहीं। आप स्पोर्ट्स के साथ फॉर एग्जांपल आपको और क्या स्किल्स है आपका, एंड ट्राई टू क्रिएट व्हाट वी से करियर मैशअप, association of two, and the magic will happen at the intersection. Like for example, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बहुत है, बट मार्क जकरबर्ग डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा और साइकोलॉजी भी पढ़ा, एंड ही क्रिएटेड समथिंग अ वेरी एडिक्टिव टेक्नोलॉजी, फेसबुक, जहाँ पे हम सब अपना कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करते ही हैं, राइट। इलॉन मस्क फिजिक्स भी पढ़ा उन्होंने, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, एंड ही इज क्रिएटिंग व्हाटएवर टेक्नोलॉजी एट एन अफोर्डेबल रेट और एट अ स्केल, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि मैजिक आपका इंटरसेक्शन में होगा, और ये हमारे बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सो व्हाट आर माय मैशअप्स? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है असम से, तो मुझे बहुत बच्चों का क्वेरी आता है मेरे काउंसलिंग सेशंस में भी कि सर मुझे स्पोर्ट्स में जाना, हम कैसे आगे जाएं? तो व्हाट आई सजेस्ट देम कि आप स्पोर्ट्स के साथ अगर आपको राइटिंग अच्छा है, कैन यू एक्सप्लोर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, राइट, या स्पोर्ट्स ब्लॉगिंग। अब हर्षा बोगले का एग्जांपल देख लीजिए, परफेक्ट एग्जांपल, लाइक यू नो वेर ही मिक्स्ड हिज इंटरेस्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड हिज कम्युनिकेशन एबिलिटी। स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आपको, मैथ्स अच्छा लगता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ फॉर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, मैनेजमेंट अच्छा लगता है, गो फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, साइकोलॉजी भी आपको अगर इंटरेस्ट है, यू कैन बी अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। Not necessary that you should be on the field. Only on sports, because actually practically speaking and post pandemic what I feel is that future will be all of interdisciplinary, right? Because जो career आगे आने वाले हैं, to be very frank, none of us can predict. Like
10 years पहले डिजिटल मार्केटिंग वाज नॉट देयर बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया. और अभी की डेट में आप देखेंगे जो ट्रेंडिंग करियर्स है, जब मैं स्टूडेंट था, सर स्टूडेंट थे, हमारे टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था. We 10 never heard years of back, such words. 10 years later, when we are now at the job level, this is one of the most trending career, right? So this is what actually will happen, and it's very important for parents to understand to like it's very important कि बच्चा उस फील्ड के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आगे बढ़े एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरा इंटरेस्ट के साथ, मेरा स्किल्स के साथ कुछ मैं ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ क्या विच विल हेल्प मी पे माई बिल्स. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज just getting carried away with the only one thing is a very risky thing, not a very practical advice. Like for example, I love maths, I love magic, I do math shows. तो मैं math shows कर करके I have now started supporting myself. But it is only possible when like initial will be always a very tough route to go ahead, right? So ये बहुत ज़रूरी है कि develop the skill which a world needs and at the same time pursue your passion. 21st सेंचुरी में ये बहुत पॉसिबल है. ऑनलाइन कोर्सेज है, यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन है, मेंटर्स अवेलेबल है, कोचेस अवेलेबल है. आई थिंक इट्स नाउ मोर पॉसिबल टू परस्यू योर ड्रीम एंड परस्यू योर चॉइस. आप कर सकते हो एंड यू कैन ग्रो अहेड इन योर I करियर. mean, very diverse factors have been added right now. अभी जो diversification और interdisciplinary sciences के बारे में आपने कहा, such Actually, things just इवन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसमें सेम फैक्ट है, सेम मॉडल वो लोग दे रहे हैं कि आप जो भी आपका चॉइस होगा आप उसको You can सिलेक्ट mix करिए and- और mix and अपना match. अपना Actually, मिक्स आप सब देखेंगे ना कि लाइक सीबीएसई हो या काउंसिल हो, मतलब हमारे काउंसिल में भी ये प्रोविजन है कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ सकता है. सो वो काउंसिल में भी है, सीबीएसई में भी है. द प्रॉब्लम इज But दैट students hardly do that. द स्कूल डजंट ऑफर दैट. Yeah. स्कूल ही नहीं The problem is that कि जो करियर काउंसलिंग एंड जो करियर गाइडेंस का जो पार्ट है, इट शुड बी वेरी मच इन द स्कूल लेवल. लाइक स्कूल में अगर एक बच्चा क्लास 9, 10, 11, 12 में उस एज में है, हम उसको एक दिन एक करियर गाइडेंस देके हम नहीं बता सकते. वी नीड अ प्रॉपर करियर काउंसलिंग सिस्टम्स इन द स्कूल जहाँ पे हम बच्चों को वी गिव देम एक्सपोजर in a very structured manner so that they know about all the options together. Okay, we'll talk about this counseling section. We'll एक छोटा सा break लेना है. We'll take a break and then we'll definitely come back to Debashish Saha sir. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ. আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা বিষয়ৰ ওপৰত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দশম আৰু দ্বাদশ পাছ আউট ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰিলে, ফলাফল ঘোষণা হৈছে. ইয়াৰ পিছত কি কৰিব, দেট ইজ what to do next. আৰু আমি career counseling-ৰ কথা পাতি আছিলোঁ. Debashish sir wanted to add something to it. Yeah, actually, when Ridesh and Lahoti ji was discussing, it reminded me of one very old saying which I saw on the table of one gentleman in the office. I visited him. It was written, first you know what you love doing most, and then find someone who will pay you for doing that. Okay, who will Yeah, pay you for doing that? So that's actually, if we see, we were all discussing that only. Correct. So I understand my interest, then I prepare myself and find a job where I get paid by doing that. So that's what. So nicely, this saying, reminded me of that summing up. But unfortunately, the world is not so simple. We have to have backup plans. So if I am interested in some specific domain, this may have an opportunity, may not have an opportunity. Even if it has an opportunity, I may be successful in that, I may not be. I mean, there should be always a plan B. Correct. So it is very important, as he was mentioning, a very important plan B is to be there. Yes. So the student, when his interests are important, but family of interests he should try and recognize, which keep his interest alive, and thus he can prepare himself in a much broader manner, so that he gets fit into the plan A or the plan B or the plan C, Yes. and still stays happy by doing what he loves doing most. Yes. Absolutely. So I think that's very, that is very necessary. important. Yes. So when one understands that he or she has to pursue a certain career, then of course that would not be smooth. I mean, there are hurdles like entrances, examinations, and preparation for that is required. And a proper mindset is also required, guidance is required. So how to do that? मैं बोलता हूँ Sir. एक्चुअली क्या है, जैसे ही आपने कोई भी करियर चूज कर लिया, आप समझिए
मतलब इंडिया के सिस्टम में 2 टाइप के एग्जाम है। एक तो एग्जाम अभी आपने जो कल रिजल्ट आया, दैट इज एब्सोल्यूट नेचर ऑफ एग्जाम, कि भाई आपके 100 मार्क्स का पेपर है, पहले से आपको पता है सिलेबस इतना है और जितना आप उसमें मेहनत करेंगे ऑफ कोर्स आप मतलब पास हो सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ सीट्स, लाइक यू हैव सीन 99.5% स्टूडेंट गॉट पास्ड इन क्लास 10th और 12th, बट व्हेनेवर यू डिसाइड फॉर अ कैरियर लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल, तब ये पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि तब क्या होता है, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल ने नीट में अराउंड 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, 15 लाख, और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ही कम है, अराउंड 30,000 40,000 गुड सीट्स आर देयर। तो आप समझिए कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए that should be different for these kind of exams. तो सबसे पहले कोई भी एस्पिरेंट है जो डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी कैरियर वो परस्यू करना चाहता है, उसने एक बार पहले डिसाइड कर लिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ। अब उसके लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में 3 स्टेप में सक्सेस मिलता है। पहला स्टेप गोल सिलेक्शन, आपने गोल बना लिया, जैसे मैंने गोल बनाया कि मुझे आईआईटी में पहुंचना है, तो मैंने तुरंत अपने आप को अवेयर किया, पेरेंट्स को बताया कि भाई आईआईटी का ये एग्जाम होता है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप होता है तैयारी, प्रिपरेशन। ठीक है, अब प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मतलब चीजों की जरूरत पड़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, जैसे कई लोग बोलते हैं, कई पेरेंट बोलते हैं कि अच्छा टीचर मिल जाए प्रिपरेशन हो गया, कई लोग बोलते हैं कि सर अच्छी बुक्स का लिस्ट दे दीजिए, उन बुक्स से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, एक क्या कहते हैं प्रॉपर टेस्टिंग पैटर्न होना चाहिए, ताकि रेगुलर टेस्ट हो, ताकि बच्चा समझ पाए कि उसे किस टाइप के एग्जाम में बैठना है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है, बट मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में या किस सिस्टम के अंदर तैयारी करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू नीड टू टेक। ओके, सो आप हमेशा उस इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करिए अपने गाइड के रूप में, अपने मेंटर के रूप में, जिसमें आपको ये एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले जिसमें अच्छी फैकल्टीज भी हो, अच्छा क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल भी हो, अच्छे मतलब मेंटरिंग भी हो, और टेस्टिंग भी बहुत अच्छा हो। So these all things will make you succeed. The student has to think about environment or a place where he gets the amalgamation of all the things. Actually होता क्या है, अभी जैसे मार्केट में there are plenty of options, like I can say for JEE there are plenty of institutes working there. Yes. But what you need to think first, कि which system is better for your child. Not which faculty is better or not which study material is better, but you need to understand which system will be more conducive for your as child. a package. Yeah, of course, as a package. Because the effect, जो असर होता है वो सब चीजों का साथ में होता है. So conducive environment is definitely required for the child, for the student to grow mentally also and be in alignment with whatever course that student is pursuing. देखिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं जस्ट ये देख के पहुँच गया कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा फैकल्टी है या ये वाली चीज़ है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है. मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने जैसी मतलब पहले वीक में एग्ज़ाम दिया, मेरे नंबर कम आए, मेरे को अब कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मेरा सारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया. तो एक सिस्टम होना चाहिए जो रेगुलरली स्टूडेंट को सपोर्ट करे, एस्पिरेंट को सपोर्ट करे. एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम we people are also developing in Vision 50 also. So in Vision 50 we are making this type of conducive environment so that each and every child will get a personalized attention. We have all these factors that I have said before. Okay. These factors actually matter a lot because सिर्फ अकल study material, अकल faculty single factor চাই পেলাই যেতিয়া অভিভাৱকসকলে choose কৰে বা student এজনে choose কৰে, তেতিয়া পিছৰ পৰ্যায়ত হয়তো কিছুমান হেঙাৰ the hurdles আহি পৰে. So these things are literally required. तो अगर हम USTM की बात करें या Vision 50 की बात करें, तो आप कोई भी करियर चूज करिए. आप चाहे इंजीनियरिंग का करियर चूज करिए, चाहे मेडिकल का करियर चूज करिए, चाहे आर्ट साइड में करियर चूज करिए, APSC UPSC का मतलब करियर चूज करिए. ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट हियर. We will talk about it. Definitely it needs more. I just wanted to add to Ridesh ji.
one thing it comes to my mind, USTM, we have a very varied range of coaching and guidance and mentoring programs. sessions, like for the NET eligibility test, for SLATE, for GATE. Now what happens, our students, they attend the classes from the morning 8 to 3. Okay, after that they need to go home. Okay, they will feel hungry, but our NET coaching starts after that. Now when you mentioned about package and needs, okay, the needs can be as small as he will feel hungry or she will feel hungry. So we provide refreshments to the students there. The Okay. student, when he finishes the class, they will need to go home, so we provide them transportation. So if you are in the class, if your package is not complete, you will not be able to focus And and these are very concentrate. simple things, आप but सोचते these things रहोगे should कि also मैं be घर taken कैसे care of. जाऊंगा, मैं भूख लगा है, मैं खाऊंगी क्या? So I mean, the class will go for a toss. Their mentor may be very good, the study material may be very good. So it's a So we'll total talk package about and it, small, but small we things, just need to take a small break here. সৰু বিৰতি এটা লৈছো আৰু এইখিনি বিষয়ে আমি নিশ্চয় কথা পাতিম আৰু। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ আৰু দেৱাশিষ স্যাৰ তেখেতে আমাক কৈ আছিলে যে অকল পঢ়াৰ কথা ভাবিলে নহব, অকল কি পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম, এনভাইৰনমেন্ট কনডিউচিভ কেনেকৈ হ'ব, ভোক লাগিলে কি খাম, অহা যোৱা কেনেকৈ কৰিম. হি ইজ টকিং এবাউট এভৰিথিং which is actually needed for the overall development and motivation of a child. So I'll come back to you. Yeah, so continuing what I was mentioning, so we have a Center for Competitive Examination. Okay. So every student is not cut for only IITs or medical. So we have got different sets of mentoring sessions. We have got for NET, SLATE, we have got for civil services. Now take civil services. Ideally, a civil service student will do a graduation and then take coaching and then waste 1 or 2 years and then probably get qualified for civil services, whether it is state or central. Now what we realize is that these 2 years, today in this world, time is money. If we are losing 2 years, can we see that he doesn't lose or she doesn't lose? So we came out with a course of BA Administration and Governance. So there, in this course, the student prepares for the civil services examination, studies all those courses or subjects which he or she wants to while appearing for the civil services, and while doing that also graduates in the same time. So straight saving with mentoring and guidance and everything. And similarly, we have got coaching and mentoring for allied services. There are so many government competitive examinations which happen, which probably we don't even know. If People you go to hardly the think DC about court office, allied services. बहुत कम सोचते हैं. Right. They go straight for, there is a traditional straight strategy method. Either you become a doctor or you become an engineer. Correct. So, and that's the end of the world. So unfortunate. There's so many other courses which they were mentioning. So now all these things are there, and this has been the trend and tradition of thought process of USTM and ERDF. So what we have then thought is to come up with something like Vision 50, which he was mentioning. Okay. So there we have got it for GE, we have got it for NEET, and we have also got it for civil services. Okay, and so much so, you think about it, while I mentioned the small things, we have got courses with residential facility also. Now Okay. think a student from DKJULI, you are from DKJULI, I comes am. to Guwahati, wants to take the coaching. रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? Can the parents afford that kind of a costly paying guest accommodation? Is it safe We're and thinking secured? of something extra added to So whatever it's a incurring package things. again. So we have got a residential program also for people who want to take this mentoring. So what is most important is we have to think about the packaged environment which will create that inspiration in the student to go ahead and get it. So that's what it. So I think you can give a little more elaboration about the Vision 50, what we are taking it forward. Like. So like जैसे कि सर आपने बोला कि लाइक एक जैसे एक स्टूडेंट जब आता है बाहर से तो उनको ये पेरेंट्स के लिए क्या है, अभी स्पेशली पेंडेमिक के बाद तो ये और ज़्यादा रेलेवेंट है कि मेरे जो स्टूडेंट रह रहे हैं गुवाहाटी के सिटी में, क्या वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं. क्या वो अपना फोकस तो लूज़ नहीं कर देंगे? क्या वो हमारे लिए, क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम तो वहाँ पेरेंट की तरह नहीं हैं,
क्या हमें कोई वहाँ पे एक लोकल गार्जियन या लोकल पेरेंट मिल सकता है जो इंश्योर करेगा सिर्फ बच्चे का प्रिपरेशन नहीं बट बच्चे का वेलबिंग, नॉट ओनली वेलबिंग फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, इमोशनली, एवरीथिंग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एंड हमारे जितने भी विजन 50 के मेंटर्स हैं, हम लोग सब इस पे ब्रेनस्टॉर्म करके हमने ये रियलाइज़ किया कि देखिए अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराना है बच्चों को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू बी विद देम 24/7 in some or the other way. Only coming to a coaching and doing a class will not help them crack or ace the exam. आपने कोचिंग में गए, आपने क्लास कर लिया, उसके बाद क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू दे डू सेल्फ स्टडी? Do they know how to learn? It's like nurturing them like a family. Family, right? Yeah. And for us, every child is as important as, like, we don't have this concept of कि हमारा एक अलग special batch होगा जिसमें से हम 5-10 बच्चों को पढ़ाएंगे और वो हमारे poster students बन जाएंगे और we will publish that. No, I don't believe in that. None of us believe in that. Poster students is a beautiful word. So we want every child to be their best, right? हमारे लिए हर बच्चा, हृदेश्वर हमेशा ये एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे लिए हर बच्चा एक केस स्टडी है एंड वी रियली बिलीव ऑन दैट। एक स्टूडेंट आता है अपनी कुछ एक स्किल्स के साथ, हम उसको कैसे उसके बेस्ट पोटेंशियल पे ले जाए एंड उसके लिए यू नीड अ कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर दैट। सो वी फेल्ट लाइक कि तो हमने क्या कर रहे हैं, अभी जो बच्चे क्लास 12 के एग्जाम्स दे रहे हैं और अगर आप ड्रॉप ईयर देना चाहते हो और आप सोचते हो कि मुझे IIT या मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमारे लिए हमारा जो विजन 50 अकेडमी है, USTM कैंपस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस इन द रीजन। उस कैंपस में हमने एक डेडिकेटेडली हमारे चांसलर सर ने हमें एक स्पेस दे दिया है जहाँ पे बच्चों का खाना पीना रहना, सो बेसिकली हॉस्टल फैसिलिटीज, उनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो वी नीड ऑनलाइन कंप्यूटर फैसिलिटीज ताकि वो बच्चे डेली वो कंप्यूटर के एनवायरमेंट में दे गेट यूज्ड टू इट, एंड मेंटर्स का एक्सेस। सो वी गो देयर, वी स्पेंड टाइम विद देम एंड लाइक स्पोर्ट फैसिलिटी, खेलने का जगह, आपको एनरिचमेंट के लिए जो आपको डिजिटल क्लासेस चाहिए, जो स्मार्ट क्लासेस चाहिए, सारा फैसिलिटीज का हमने एक प्रोग्राम वहाँ रन कर रहे हैं। एंड जो भी स्टूडेंट जो ड्रॉप ईयर देना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, जो भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, जो भी हम बात कर रहे हैं वो तो मिल ही रहा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव हैंडपिक्ड द बेस्ट मेंटर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट फ्रॉम द रीजन, बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी बेस्ट पॉसिबल मेंटर्स हैं जिनका या तो उन्होंने वो एग्जाम खुद क्रैक किया है, IIT हो या नीट हो, या वो काफी बच्चों को, हजारों की तादाद में बच्चों को हेल्प किया उन्होंने वो एग्जाम क्रैक करने के लिए। हम उनके साथ मिलके ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि विजन 50 इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अ मेंटरिंग प्रोग्राम वेयर वी आर टेकिंग होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्प स्टूडेंट्स। सो यू कैन विजिट vision50.org अगर आप JEE और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस, वी हैव अ रेसिडेंशियल फैसिलिटी, आप USTM कैंपस के अंदर रहेंगे, आपका पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहाँ होगा। आई थिंक 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली SOPs आ जाएंगे नए, जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे, बट ऑनलाइन हम कराएंगे अभी और उसके बाद वी विल गो टू द ऑफलाइन। We'll talk more, Hrideshwar. Just we have to take a small commercial break here, can't help it. Horu biroti eta loisu. বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ USTM জ্ঞান প্ৰবাহলৈ। আৰু আমাৰ হাতত সময় যথেষ্ট নাই, কিন্তু আমি তথাপিও কথা পাতি আছিলোঁ যে USTM বা विजन 50 एकेडमिक কেনেধৰণৰ সুবিধা কি দিয়া হয়। तो सर मैं हृदेश जी से जानना चाहूँगी कि जैसे विजन 50 एकेडमी के बारे में बोल दिया आपने, तो इसमें you will be taking care, but there are certain inputs which you will also like to share with us. Entrance जैसे अभी दिनेश सर बोल रहे थे कि हम लोगों का जो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर ड्रॉपल मतलब स्टूडेंट्स, सेम उसी पॉइंट को मैं एक और अलग तरीके से बोलना चाहूँगा कि जो 10th क्लास के पास वाले लोग हैं जो 11th में जा रहे हैं, अब सोचिए अगर मैं एक रेगुलर 11th वाले की मतलब डेली रूटीन को देखूँ तो होता क्या है उसके साथ, उसका मतलब वो एक पर्टिकुलर स्कूल का पार्ट होता है, स्कूल उसे जाना होता है, स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी है, और अपार्ट आफ्टर दैट उसे कोई ना कोई कोचिंग में डाल देते हैं उनके पेरेंट, तो कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी जाना है। एंड कोचिंग और स्कूल कभी एक साथ मतलब मिक्स नहीं होते हैं। स्कूल वाले बोलते हैं हमारा अलग सिस्टम है, हम 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ नहीं चला सकते, और कोचिंग वाला बोलता है भैया हमारा अलग सिस्टम है, हम स्कूल के साथ कोप अप नहीं कर सकते। तो आप स्टूडेंट के बारे में सोचिए, स्टूडेंट सुबह 6 बजे उठेगा, 7-8 बजे स्कूल पहुँचेगा, दिन में 3 बजे 2 बजे वापस लौटेगा, ट्रैफिक है, खाना भी नहीं खा पाएगा, कोचिंग के लिए दौड़ेगा, कोचिंग में उसे नए चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे,
और वहाँ पे फिर वो 9-8 बजे तक रहेगा, और जब वो घर पहुँचेगा तो आप सोचिए रात को 10 बज गए खाना खाने के बाद, आप वो स्टूडेंट हो, आपकी क्या स्थिति रहेगी जब आपके पास स्कूल का भी होमवर्क होगा, अलग चैप्टर्स का, कोचिंग का भी होमवर्क होगा, अलग चैप्टर्स का, और समझाने के लिए कोई नहीं होगा. Mental So drainage. this is the normal day-to-day life of a class 11th student. Student, right. तो हम लोग यही चाहते हैं, या मैं जब भी किसी पेरेंट को रिकमेंड करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड हैव अ सिस्टम विच इज कंड्यूसिव, अगेन द सेम पॉइंट दैट वी आर रेजिंग, कि भैया आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो स्टूडेंट को लर्निंग में सेल्फ स्टडी का टाइम दे. अभी कोई सेल्फ स्टडी की बात नहीं हो रही है. आप सोचिए ना, रात को 11 बज गए, सुबह 6 बजे फिर से उठना है, कैसे, क्या करेगा स्टूडेंट, किससे पूछेगा रात को 12 बजे अगर से कोई डाउट आता है तो? कोई नहीं बताने वाला. तो हमारा जो सिस्टम है वो 24/7 है, और हमारे सिस्टम में आपको प्रॉपर केयर के साथ आप हमारे हॉस्टल में, हमारे स्कूल में, मतलब स्कूल के अंदर ही जो कोचिंग की जो फैक्टर है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है. बिल्कुल. तो जो स्कूल और कोचिंग स्टडीज अगर एक साथ इंटीग्रेट हो गए, दैट मीन्स यू आर गेटिंग बोथ द थिंग्स collectively, and you are having plenty of time for self study. There is no extra burden. Of course. तो मैं जितने भी पेरेंट हैं जो जिनके बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं, या जो 12th पास कर रहे हैं, 12th पास करने के लिए तो आपको स्कूल का फैक्टर नहीं है, बट 11th वाले बच्चों के लिए स्कूल बहुत ही टीडियस चीज़ हो जाता है. सो इस टाइप का प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं इन द विजन 50, ऑफ कोर्स यू शुड विजिट एंड यू शुड सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि स्टूडेंट अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी देवाशीष सर कुछ बाग के बारे में बोल रहे थे, तो ऑफ कोर्स बाग जो एग्ज़ाम है, बाग के एंट्रेंस के लिए हम लोग एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम कर रहे हैं 8 अगस्त को. तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं APSC, UPSC और या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो बिल्कुल उसको ज्वाइन करें और टैलेंट हंट एग्ज़ाम में 8 अगस्त में. 8 अगस्त. इसमें कुछ मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं. एक मॉड्यूल है हमारे क्लास 10th के बाद, अगर कोई भी बच्चा 11th 12th कहीं पे भी पढ़ रहा है और अगर उसको UPSC या APSC के लिए अपेयर करना है, तो हम एक रिमोट मेंटरिंग प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, जो आपको 5 साल का मेंटरिंग प्रोग्राम है. आप 11th 12th कहीं से भी करिए या अंडर ग्रेजुएशन कहीं से भी करिए, हम आपको सपोर्ट करते जाएंगे बाय मटेरियल्स, बाय गिविंग यू गाइडेंस रिमोटली. तो आप वो उसका भी एक एग्जाम हो रहा है इसमें. एक मॉड्यूल 10th के बाद है, एक मॉड्यूल 12th के बाद है, जो हमारा बाग का जो प्रोग्राम सर बता रहे थे. इसके अलावा अगर आप कॉलेज के बाद भी अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं और से किया है, क्योंकि हमें बहुत क्वेरीज आए कि सर हमने ग्रेजुएशन कहीं और से कर लिया, तो उसके लिए भी वो सेम प्रोग्राम अवेलेबल है. 8 अगस्त vision50.org इज द वेबसाइट. आप काइंडली उसको विजिट कर सकते हैं. विजन 50 जो हम बोलते हैं, 50 में हमारा चांसलर सर का यही विजन है कि 50 बच्चों को हम 100% स्कॉलरशिप से पढ़ाएंगे. 51st से हमारा पेड एडमिशन, मतलब जो भी फीस स्ट्रक्चर एक नॉमिनल है वो हम लेंगे. Absolutely. Thank you so much for joining us in this session. We'll be definitely talking more in next sessions. মই ধন্যবাদ জনাইছো দেৱাশীষ স্যাৰ, দিনেশ স্যাৰ আৰু হৃদেশ স্যাৰ, আপোনালোকে আহিলে আৰু জ্ঞান প্ৰবাহত আজি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু অভিভাৱক আছে তেওঁলোকে কিছু হ'লেও নিশ্চয় আভাস পাইছে যে দৰাচলতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ এন্ট্ৰেন্স এক্সামেই হওক বা জীৱনৰ সংগ্ৰামেই হওক তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব. ভিজন 50 একাডেমীত আপুনি নিজৰ সন্তানক পঢ়ালে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাব বুলি মই ভাবোঁ. ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু জ্ঞান প্ৰবাহৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ.